Chapter name Polynomials. Class 10th, NCERT, CBSE and other boards. Complete chapter of polynomials in one video for you, my lovely childs, that you so got good marks and preparation well in short time. Px equal to a0 plus a1x plus a2x square and so on to an x की power n. Highest power of x in px called degree of polynomials. यानी कि px is said to be polynomials if it is right in the form of this. And highest power of x called the degree of polynomials. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स, इधर पोलिनोमियल्स इधर डिग्री, फाइंड द डिग्री ऑफ दिस. हियर एक्स इज नॉट प्रेजेंट यानी कि एक्स टू की पावर 0, तो देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस 0. हियर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स 1, तो देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस 1. In this highest power of x 4, so therefore degree of this 4. In this highest power of x is 5, so therefore degree of this polynomial is 5. Next highest power of x in this polynomial is 3, so therefore degree of this 3. Now types of polynomials. लीनियर पोलिनोमियल्स क्या हो इन फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस के बी. ए पोलिनोमियल राइट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल्स. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स राइट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स. क्यूबिक पोलिनोमियल्स राइट इन द फॉर्म ऑफ एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल्स. बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स मीन्स राइट इन द फॉर्म ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स. क्वेश्चन नेक्स्ट. Write down the polynomials in the basis of degree. In this, write down the polynomials in the basis of degree. Here degree of this polynomials is 2. There is quadratic polynomials. In this highest degree of y 3, cubic polynomials. Here in this highest power of y 1, so in the form of linear polynomials. In this highest power of x 4, so by quadratic polynomials. In this polynomials highest power of x 2 quadratic polynomials. And in this questions highest power of x 3, so therefore it is cubic polynomials. Next question. A real number k is said to be a zero of a polynomial px if pk equal to 0. For zeros put px equal to 0 and find the values of x. Values of x are the zeros of the px. Px is a quadratic polynomial. Sum of zeros. Let alpha and beta are 2 zeros of this polynomials, then sum of zeros equal to alpha plus beta, and in the form of coefficient minus
कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन के मल्टीपल ऑफ कोफिशिएंट या मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल्स लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर थ्री जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल्स, देन सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन मल्टीपल ऑफ एक्स क्यूब, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज इन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू मल्टीपल ऑफ एक्स सी अपॉन के मल्टीपल ऑफ एक्स क्यूब ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन के मल्टीपल ऑफ एक्स क्यूब। Next question. The graph of y equal to px are given in figure 2.10 below. For some polynomials px, find the number of zeros of px in each case. Number of zeros of px. px cuts x axis at which point called the number of zeros of the polynomials. In this graph, first x axis, y axis and the graph of a curve. तो curve is parallel to x axis, never touch x axis यानी कि parallel x axis, तो number of zeros more than 2 यानी कि in non defined, तो यानी कि line coincident zeros नो जीरोज, लाइन क्या होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो नंबर ऑफ जीरोज नो जीरो। इन दिस कर्व एक्स एक्सिस कर्व कट्स एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, तो देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज वन। इन दिस कर्व cut x axis at 1, 2 and 3 points, so therefore number of zeros 3. In this curve cuts the x axis at 2 point A and B, so therefore number of zeros 2. In this curve cuts the x axis at 4 point A, B, C and D, so therefore number of zeros equal to 4. In this curve cuts the x axis at 1, 2 and 3 points, so therefore number of zeros equal to 3. Next questions. Find the zeros of the quadratic polynomials and verify the relation between the zeros and the coefficients. To find the zeros, here यानी कि 4 zeros. Find the zeros, we put this is equal to 0, तो x square plus 7x plus 10 equal to 0.
Now factorize this. तो x square plus factorize 10 whose sums equal to 7 and product equal to 10. तो 2 प्लस के 5, तो 2x प्लस के 5x प्लस 10 इक्वल टू 0. x taking x common, x प्लस के 2 in this 5 common, x प्लस के 5 इक्वल टू 0. तो x प्लस के 2 and x प्लस के 5 इक्वल टू 0. If x plus 2 equal to 0, x equal to minus 2 and x plus के 5 equal to 0, x equal to minus 5. तो therefore जो zeros of x square plus 7x plus 10 equal to minus 2 and minus 5, 2 zeros. कह रहा वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशेंट्स. सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज माइनस 2 प्लस माइनस के 5 इक्वल टू माइनस के 7. सम ऑफ जीरोज इक्वल टू इन दिस माइनस कोफिशेंट ऑफ x अपॉन के कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर. कोफिशेंट ऑफ x इक्वल टू 7 एंड 1, तो माइनस के 7. तो बोथ आर इक्वल, यानी कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशेंट ऑफ x अपॉन के कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर. तो इट इज वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस 2 इंटू माइनस 5 यानी कि 10. इट इक्वल टू सी अपॉन के ए, यानी कि सी मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म 10 एंड ए मीन्स मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर 1. तो यानी कि 10. यानी कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन के ए and product of zeros equal to c upon k a. So it's verify both the conditions. Next questions. Find the zeros of this. For zeros x square minus 3 equal to 0. यानी कि x square 3 यानी कि रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी. हियर ए इक्वल टू एक्स एंड बी इक्वल टू रूट 3. तो एक्स प्लस रूट 3 एंड एक्स माइनस रूट 3 इक्वल टू 0. तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू रूट 3 एंड माइनस के रूट 3. तो जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू रूट 3 एंड माइनस रूट 3. सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, जीरोज आर रूट 3 एंड माइनस रूट 3. तो इक्वल टू 0 एंड माइनस मल्टीपल ऑफ एक्स अपॉन के मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर. मल्टीपल ऑफ एक्स, एक्स इज नॉट प्रेजेंट हियर 0. तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 0 and verify multiple of x upon multiple of x square. A product of 0 equal to रूट 3 इंटू माइनस के रूट 3 यानी कि माइनस के 3. वी नो प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन के कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर. हियर कॉन्स्टेंट टर्म माइनस के 3 अपॉन के 1, तो माइनस 3. तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ 0 हियर माइनस 3
and product of zeros constant term upon constant coefficient of x square equal to -3. So therefore both are verified. Next, x square minus 2x minus k8. Find the zeros. यानी कि 4 zeros. Put x square minus k 2x minus 8 equal to 0. Now factorize these. X square factor of 8 such that product of whose equal to 8 and sum equal to 2 minus k2. तो x square minus k 4x plus k2. 4 into 2 8 and minus 4 plus 2 minus k2. X common, x minus k4 plus taking 2 common, x minus k4 equal to 0. तो x minus 4 x plus k2 equal to 0. तो therefore x equal to, put x minus 4 equal to 0, x equal to 4 and put x plus 2 equal to 0, x equal to minus 2. तो therefore zeros of x square minus k 2x minus 8 equal to 4 and minus 2. Now find sum of zeros. Sum of zeros यानी कि sum of these two equal to 2 and sum of zeros also equal to minus coefficient of x upon k coefficient of x square, coefficient of x minus k2 upon coefficient of x square यानी कि 1 यानी कि 2. तो both equal to 2. तो therefore it is verified. Now product of coefficient equal to, here are the zeros of 4 and 2. Zeros, product of zeros, 4 into minus 2 यानी कि minus 8. Product of zeros equal to constant term upon k coefficient of x square. Here constant term minus k 8 and coefficient of x square 1, तो minus k 8. So therefore product of zeros minus 8 and by this product of zeros minus 8. तो both are verify. तो sum of zeros verify and product of zeros verify. In next 4x square minus k 4x plus k 1. 4 zeros, put 4x square minus k 4x plus 1 equal to 0. तो 4x square minus k 2x minus 2x plus 1 equal to 0. Taking 2x common, तो 2x minus k1 minus 1 common, 2x minus k1 equal to 0 and 2x minus 1 and 2x minus 1 equal to 0 and 2x minus 1 common, तो 2x minus k1. तो therefore x equal to 1 by 2 and 1 by 2. तो zeros of 4x square minus k 4x plus 1 equal to 1 by 2 and 1 by 2. Now sum of zeros equal to 1 by 2 plus 1 by 2 यानी कि 1 and sum of zeros in term of coefficient, sum of zeros minus coefficient of x upon k coefficient of x square. My children, coefficient of x equal to 4 and coefficient of x square, coefficient of x equal to minus 4 and coefficient of x square equal to 4. तो minus minus plus, तो 4 upon 4 1. Yeah, तो both are equal. Sum of zeros equal to 1 and sum of zeros in the form of coefficient also equal to 1. तो sum of zeros verify.
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू, यानी कि जीरोज आर 1/2 एंड 1/2, तो 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। माय डियर चाइल्ड, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4, तो 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 and product of zeros in form of coefficient also 1/4, so therefore it is verified. Next question. Six x square minus 7x minus k 3. For zeros put 6x square minus k 7x minus k 3 equal to 0. Now factorize this 6x square minus k 9x plus k 2x, यानी कि 6 3 जा 18, तो factor of 18 such that their product equal to 18 and sum equal to minus k 7, तो -2 plus -9 plus 2 -7 and 9 into 2 18, यानी कि इन प्लेस ऑफ -7 -9 plus -2 and these are same. Taking common 3x, 3 2 जा 6, 2x minus k 3 plus 1 2x minus 3 equal to 0. 2x minus 3 common, 3x plus k 1 equal to 0. If put this equal to 0, यानी कि x equal to 3/2 and put this equal to 0, तो 3x equal to -1 and x equal to -1/3. तो therefore zeros of 6x square minus 7x minus 3 equal to 3/2 and -1/3. Find sum of zeros. Sum of zeros यानी कि 3/2 plus minus के 1/3. Taking LCM 6, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 plus minus 3 2 जा 6 and ये, तो 7/6. अब सम ऑफ जीरोज इन फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस के 7 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6, यानी कि 7/6. तो बोथ आर इक्वल, यानी कि सम ऑफ जीरोज 7/6 एंड सम ऑफ जीरोज इन द फॉर्म ऑफ coefficient also equal to 7/6, so it is verified. Now product of zeros, यानी कि फर्स्ट 3/2 एंड नेक्स्ट माइनस के 1/3, 3 3 यानी कि माइनस के 1/2. ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन द फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. हियर कांस्टेंट टर्म माइनस के 3 कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6, तो -3 अपॉन के 6, यानी कि -1/2. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू -1/2 एंड इन द फॉर्म ऑफ coefficient also equal to -1/2. So therefore both are satisfied. Next questions. 3x square minus x minus k 4. तो 4 zeros put 3x square minus x minus 4 equal to 0. Factorize this
4 3 is 12. Factor of 12 such that sum of these equal to -1 and product equal to 12. तो 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0. x कॉमन तो 3x माइनस के 4 प्लस 1 कॉमन 3x माइनस 4 इक्वल टू 0. तो 3x माइनस के 4 एंड x प्लस के 1 इक्वल टू 0. तो देयरफॉर x इक्वल टू 3x माइनस 4 तो यानी कि 4/3 एंड माइनस के 1. तो जीरोज ऑफ 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 इक्वल टू 4/3 एंड -1. तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 4/3 प्लस माइनस के 1. 3 LCM तो 4 माइनस के 3 यानी कि 1/3. अब सम ऑफ जीरोज इन द फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट्स. तो माइनस मल्टीपल ऑफ x अपॉन के मल्टीपल ऑफ x स्क्वायर. तो मल्टीपल ऑफ x माइनस के 1 एंड मल्टीपल ऑफ x स्क्वायर 3 तो 1/3 तो बोथ इक्वल टू 1/3. तो देयरफॉर इट इज सेटिस्फाइड. प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि 4/3 इंटू -1 तो माइनस के 4/3. प्रोडक्ट ऑफ जीरो इन फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन के कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो कांस्टेंट टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म माइनस के 4 एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3 तो माइनस के 4/3 तो बोथ इक्वल टू -4/3. तो देयरफॉर इट इज ये. नेक्स्ट क्वेश्चन सम ऑफ जीरोज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1. तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स. सम ऑफ जीरो यानी कि यहाँ लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना इक्वल टू x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इंटू के इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो k इंटू x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज 4 तो 4x एंड प्लस के 1 इक्वल टू दिस 4k इक्वल टू 1. इफ k इक्वल टू 1 तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 1. नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हुज सम्स एंड प्रोडक्ट आर गिवन वैल्यू. सम ऑफ जीरोज ये एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये. तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इक्वल टू k इंटू x स्क्वायर माइनस के सम ऑफ जीरोज इंटू x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. तो k इंटू x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज माइनस के 3 तो माइनस के 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 तो प्लस के 2 तो इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस के 3x प्लस के 2 तो 4k इक्वल टू 1. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 2. क्वेश्चन नेक्स्ट सम ऑफ जीरोज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस के 1. तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स
इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस के 1 तो के इंटू टेकिंग 4 एलसीएम तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4 4k इक्वल टू 4 इस k की वैल्यू 4 तो 4 से 4 गया 4k इक्वल टू 4 क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4 नेक्स्ट क्वेश्चन सम ऑफ जीरोज √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3 क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3 इक्वल टू k इंटू टेकिंग एलसीएम 3 1/3 3 तो 3x स्क्वायर माइनस के 3√2 इंटू एक्स प्लस के 1 तो 4k इक्वल टू 3 क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x प्लस के 1 इन नेक्स्ट क्वेश्चन सम ऑफ जीरोज माइनस 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू के एक्स प्लस के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज -1/4 इंटू एक्स प्लस के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 तो के इंटू टेकिंग 4 एलसीएम तो 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स एंड प्लस के 1 तो 4k इक्वल टू 4 क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस के 1 दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -1/3 3 -1 and -1/3 are the zeros of the cubic polynomials 3x cube minus k 5x square minus k 11x minus k 3 and then verify the relationship between the zeros and the polynomial coefficient in form of coefficients. अब these are the zeros of this polynomials if it satisfy this or if put x equal to 3 p3 equal to 0 put x equal to -1 p -1 equal to 0 and for this also equal to 0 तो first we find p3 तो p3 put the values of x equal to 3 तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 3 3 जा 9 9 5 जा 45 11 3 जा 33 एंड माइनस के 3
यानी कि 81 माइनस के 81 यानी कि इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज द zeros ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो p माइनस 1 पुट इन प्लेस ऑफ x माइनस 1, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 1 एंड माइनस के 3 इक्वल टू माइनस 3 माइनस 5 प्लस 11 एंड माइनस 3। तो 11 माइनस 11 इक्वल टू 0। तो इट ऑल्सो satisfy the polynomial. Now p माइनस 1 बाई 3, तो 3 इंटू माइनस 1 बाई 3 का क्यूब 5 इंटू माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर 11 इंटू माइनस 1 बाई 3 एंड माइनस 3 इक्वल टू यानी कि 1/27 यानी कि माइनस 1/9 माइनस 1/9 यानी कि 5/9 माइनस 5/9 माइनस माइनस प्लस 11/3 एंड माइनस के 3 एलसीएम 9। तो माइनस 1 माइनस 5 प्लस 33 माइनस के 9 3 जा 27। तो यानी कि 33 माइनस 37/9 यानी कि 0। 33 माइनस 37 0। तो देयरफॉर 3 माइनस 1 एंड माइनस 1 बाई 3 आर द zeros of the polynomials 3x cube माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस के 3। तो दीज आर द zeros ऑफ दिस पोलिनोमियल। नाउ वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड यानी कि सम ऑफ जीरोज, यानी कि लेट एल्फा इक्वल टू 3 बीटा इक्वल टू माइनस 1 एंड गामा इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। तो सम ऑफ द एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गामा, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस 5 अपॉन मल्टीपल ऑफ एक्स क्यूब यानी कि 3 यानी कि 5 अपॉन के 3 ये। एंड एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि एल्फा बीटा एंड गामा यानी कि 3 इंटू माइनस 1 एंड इंटू के माइनस 1 बाई 3। प्लस है ना, प्लस करेंगे प्लस तो कितना आ गया एलसीएम 3 आ गया। तो 3 3 जा 9 माइनस 3 एंड माइनस के 1। तो 9 माइनस 4 5 अपॉन के 3। तो बोथ इक्वल टू 5 बाई 3। देन इट सम ऑफ जीरोज वेरीफाइड। नव एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इक्वल टू एल्फा 3 बीटा माइनस 1। तो माइनस के 3 प्लस माइनस 1 यानी कि प्लस के 1 बाई 3 प्लस ये इंटू ये यानी कि प्लस माइनस तो माइनस के 1। तो इट इज इक्वल टू 3 एलसीएम। तो 3 3 जा 9 माइनस के 9 प्लस के 1 और माइनस के 3। तो 9 और 3 12 में तो माइनस के 11 अपॉन के 3 इन द फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट्स यानी कि एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इक्वल टू मल्टीपल ऑफ एक्स अपॉन के मल्टीपल ऑफ एक्स क्यूब, मल्टीपल ऑफ एक्स माइनस के 11 एंड मल्टीपल ऑफ एक्स क्यूब 3। तो माइनस के 11 अपॉन के 3। तो दीज आर इक्वल है, बोथ आर इक्वल। तो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। नव इक्वेशन 3x स्क्वायर क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस के 3। नो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एल्फा बीटा गामा, तो एल्फा मीन्स 3 यानी कि जीरोज क्या है एल्फा 3 बीटा माइनस 1 एंड गामा माइनस के 1 बाई 3। तो 3 माइनस 1
एंड माइनस के 1/3, तो माइनस माइनस प्लस 1 है। तो देयरफॉर अल्फा बीटा गामा इन फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, यानी कि माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस के 3 अपॉन के मल्टीपल ऑफ एक्स क्यूब क्या है 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन के 3 इक्वल टू 1। तो दीज आर ऑल्सो सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the zeros of 2x square minus 3x plus k are reciprocal of each other, then find the values of k. Zeros are reciprocal, तो let zeros are alpha and 1 upon k alpha. Find the value of k, and we know product of zeros equal to constant term upon k multiple of x square. Here constant term k and multiple of x square 2. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा, रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा 1 अपॉन अल्फा एंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस अल्फा। तो अल्फा इंटू 1 अपॉन के अल्फा इक्वल टू के अपॉन के 2, तो 1 इक्वल टू के अपॉन के 2, तो देयरफॉर के इक्वल टू 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Next questions, if -4 is the zero of the polynomials x square minus x 2k plus 2, then find k. Because x equal to -4 is the zero of the polynomials, so therefore p minus 2 equal to 0, यानी कि पुट x इक्वल टू 2 इन प्लेस ऑफ x, वी गेट दिस इक्वल टू 0। तो देयरफॉर -4 का स्क्वायर माइनस माइनस के 4 माइनस 2k प्लस 2 इक्वल टू 0, तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस के 2k प्लस के 2 इक्वल टू 0, तो 20 इक्वल टू 2k प्लस के 2, तो 2k प्लस के 2 इक्वल टू 20 माइनस के 2 18, तो 18 इक्वल टू 2k, तो k इक्वल टू 9, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोलिनोमियल्स हुज जीरोज आर ये। Zeros are 2 and 3, तो therefore quadratic polynomials equal to x square minus sum of zeros, यानी कि 2 प्लस के 3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ zeros इंटू के, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, 4k इक्वल टू 1, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोलिनोमियल्स हुज जीरोज आर 2 3 एंड 1, तो जीरोज आर 2 3 एंड 1, तो देयरफॉर पोलिनोमियल इक्वल टू k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि जीरोज ये, तो अल्फा बीटा एंड गामा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स एंड माइनस के अल्फा बीटा गामा।
के इंटू एक्स क्यूब सम ऑफ दीज तो 2 3 5 एंड 1 6 तो माइनस के 6 एक्स स्क्वायर। अब एल्फा बीटा यानी कि प्लस एल्फा बीटा 2 3 जा 6 बीटा गामा यानी कि 3 एंड गामा एल्फा यानी कि 2 इंटू एक्स एल्फा बीटा गामा 2 3 जा 6 6 1 जा 6 तो यानी कि के इंटू के एक्स क्यूब माइनस के 6 एक्स स्क्वायर प्लस के 11 एक्स माइनस के 6 4k इक्वल टू 1 तो पोलोनोमियल इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के 6 एक्स स्क्वायर प्लस के 11 एक्स माइनस के 6